Hello and a very warm welcome to this very special interview that I'm about to conduct in Sports Today. Last week was a great time if you are an Indian cricket fan when it comes to England. Indian senior cricket team defeated England in Vizag. India A team defeated the England Lions in Gujarat. And then, who I'm about to introduce at this point in time is a very, very special Indian cricket team. They recently hosted England for a T20I series and they won it 3-2. It was historic because this special Indian cricket team played at the Narendra Modi Stadium and it was an experience of a lifetime. The celebrations that followed for this first ever India versus England series was truly remarkable. I am about to meet with the members of the DCCI. The DCCI is the Disabled Cricket Council of India. And because of this, that series win that they had, it probably changed the landscape. Consider the achievements of this special Indian cricket team. They have won the World Series title in 2019, have continuously been winning locally, and now in 2023, for 4 consecutive years, they have had a streak which is really up there with the best of them. So without further ado, let me just introduce you to the special Indian cricket team who are right here in the studio today without wasting any further time. So this is the special team of superheroes, 4 superheroes and the 2 people who are behind their success in a big way. I've got Raviji here, who's the General Secretary of the DCCI. And then I've got Amir Wasim, who is the Vice Captain of the Indian team. And I've also got Jafar. And I've also got Majid. And I've also got Rajesh ji, who is handling the sponsorship and the corporate affairs of the DCCI of this team at this particular point in time. Before I come to our 2 esteemed gentlemen, I'll focus on the team first. Wasim, Amir, Wasim, सबसे पहले आपसे मैंने स्टैट्स देख रहा था, ज्यादातर आपके जो बल्लेबाज है दे हैव हिट द मोस्ट सिक्सेस, 50s भी आप ही के टीम से है और परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 80% ऑफ रन्स 4s एंड 6s में, अलॉन्ग विथ की स्ट्राइक रेट जो है 115, 135 या 140. कश्मीर से आते हैं आप सब, 2 है अनंतनाग से, एक श्रीनगर से और एक बारामूला से. यार वहां के हवा पानी में ऐसा क्या है कि आप इतने पावर हिटिंग करते हैं, सबसे ज्यादा आपका जो है स्ट्राइक रेट इतना ऊंचा है, क्योंकि यही की फैक्टर था जिससे इंडिया सीरीज 3-2 जीते थे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग टीम थी. तो ऐसा क्या था आपके प्लान में दैट ओके हम 6s, 4s, हाई स्ट्राइक रेट्स, हाई 50s कैसे आप बनाते थे ये? सर एक्चुअली जो है हमारा नेचुरल गेम है ये, हम ऐसे ही खेलते आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो, आपको बता दूं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है गेम का वो नहीं है हमारे पास. हम लोग मतलब जम्मू कश्मीर, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी डेवलपमेंट नहीं है स्पोर्ट्स के रिलेटेड. तो हम लोग बचपन से जो गेम खेलते आए वही यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे भी. तो वैसे ही मतलब हमारा जो नेचर ऑफ गेम है वो ऐसा ही है, हमारा नेचुरली गेम वैसा है, मतलब तेज खेलने का. पहाड़ों का ये स्ट्रेंथ, ठंडी हवाएं, वो सब, दैट्स द वे ना. और जफर, जितना मुझे लग रहा है आपने एक 50 मारा था, है ना? तो उस 50 में वो बहुत क्रूशियल 50 था. तो आप जब मैच ऐसे खेलते हैं, आपका जो टीम कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत लोग नहीं देखते होंगे, जब आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए थे तब 4-5 हजार लोग आए थे. और मैं ये भी बात, आई विल आल्सो टेल दिस वन फैक्ट आल्सो, कि along with the 4,000, 5,000 at the Narendra Modi Stadium, even the India A people were also watching. जैसे सरफराज ने भी देखा आपके, फिर आई थिंक रमेश पवार भी, जितना मुझे लग रहा है कोच थे, वो भी देख रहे थे. तो जब सीरीज खत्म हो गई थी तो क्या इंटरेक्शन हुआ था उन लोगों के साथ? और मैंने सुना भी था, शायद रवि जी आप बता रहे थे कि आप लोगों से मिलने के बाद सरफराज का टीम में सिलेक्शन हुआ था. तो ये जरा किस्सा बताइएगा. नहीं, एक्चुअली क्या था, हम लोग गए थे, उनके जो कोच है मिस्टर कोटक, उनसे हमारी बातचीत हुई, क्योंकि हम भी उसी टाइम में नरेंद्र मोदी बी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे जब उनका वो मैच चल रहा था. तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया. हम लोग मिलने के लिए गए थे. तो सरफराज हमारे पास आए, यार बड़ा अच्छे लग रहे हो यार, आप लोग तो बड़ा देश के लिए खेल रहे हो, तो हम लोग जो है आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं.
तो बच्चों ने उनसे बात की, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं और आई होप कि आप इंडियन टीम में भी आए। तो उनको हमने अपना एक जर्सी गिफ्ट किया। तो जैसे ही वो जर्सी उनको गिफ्ट किया तो अगले दिन उनका न्यूज़ आ गया कि यहाँ पे इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गए। तो बहुत मतलब हमें भी अच्छा लगा कि कल यार हम मिल के आए, हमने उनको जर्सी अपना गिफ्ट दिया है। और काफ़ी समय से देख ही रहे थे कि सरफराज जो है टीम में आने चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट और आपकी मीडिया से ज़्यादातर चीज़ें चल रही थी। तो अच्छा लगा कि हम सरफराज से मिले और दूसरे जो और खिलाड़ी थे जो उनकी टीम में खेले हैं उनसे भी हमारे खिलाड़ी रूबरू हुए। तो सबसे ज़्यादा सरफराज ने किससे बात किया इनमें से? हमारे से ज़्यादा नहीं कि उन्होंने कप्तान के साथ बात की। अच्छा, विक्रांत जी से ये थे। अच्छा, तो आमिर जी आप बारामूला से है ना? बारामूला हम अक्सर देखते हैं कि न्यूज़ में अनफॉर्चुनेटली रहता है क्योंकि बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके में तनाव रहता है अक्सर। तो जब से आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे बारामूला से, क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई? जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है कश्मीर में भी, कुछ समय से ना अभी ठीक हो रहे हैं हालात, लेकिन बारामूला से आपने अपना ये जो कठिन सफर है कैसे आपने तय किया था टू रीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद? एक्चुअली सर मैं बारामूला के एक गांव में रहता हूँ। वहाँ से स्टार्ट किया था क्रिकेट सर। अंडर 19 की ट्रायल्स हुई तो मैं सिलेक्ट हुआ था 19 के लिए। इसके बाद मैंने रवि सर से कांटेक्ट किया 2017 और 2016 में। तो मुझे J&K की पीडी टीम में लिया गया। हिमाचल में ट्रायंगल सीरीज थी, हिमाचल और सर हिमाचल यूपी और J&K था। तो फर्स्ट टाइम J&K चैंपियन हो गई। मैं बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। 5 मैच में 13 विकेट्स लिए थे। वहाँ से फिर सिलेक्शन हो गई थी मेरी बड़ौदा के लिए। वहाँ से सफ़र अभी तक चल रहा है। 2019 में वर्ल्ड कप, इससे पहले मार्च में जो नेपाल सीरीज थी, आज इंग्लैंड सीरीज थी। बाकी सर जो ये बारामूला का आप बता रहे, तो मेरा काम है सर क्रिकेट खेलना। क्रिकेट पे सब फोकस है मेरा। अपने फैमिली मेक माय फैमिली प्राउड, मेक माय कंट्री प्राउड। मेरा काम ये घर से ग्राउंड, ग्राउंड से घर। बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, कोई ना मैं किसी का सुन दो, एवरीथिंग आई नो। मेरा काम क्रिकेट खेलना है सर, बस बाकी मेरा फोकस क्रिकेट भी। तो देखिए ये जो सीरीज है, मतलब क्या आप ये कह सकते हो दैट, कोई भी इसका जवाब दे सकता है कि जो DCCI ऑर्गेनाइज करती है बहुत ही कम सीरीज ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इस हिसाब से आप लोगों का जो ऑफ सीजन होता है वो ज्यादा होता है। और कश्मीर से जहां आप आते हो वहां पर अनफॉर्चुनेटली कुछ समय तक बर्फबारी और ठंड इतनी होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऑफ सीजन में क्रिकेट के अलावा आप लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं? कुछ क्रिकेट के अलावा कोई और काम करते हैं या सिर्फ आप लोगों का फोकस क्रिकेट पर ही होता है? आपने जी बिल्कुल, ऑफ सीजन रहता है हमारे यहाँ कम से कम 4-5 महीने तो ऑफ सीजन रहता है। विंटर की वजह से, सर्दी की वजह से हम खेल नहीं पाते हैं। तो जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है वो लोग जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं विंटर में। वहाँ अच्छा टेम्परेचर रहता है, वहाँ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते वो अपने कश्मीर में ही रहते हैं, अपने घर का काम में, खेती बाड़ी में काम करते हैं। जैसे आमिर का एप्पल ऑर्चर्ड है घर में, मेरा भी एप्पल ऑर्चर्ड है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। माजिद का अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप है, उसमें करते हैं। जाफर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग फिर वो टाइम अपनी फैमिली को देते हैं। अपनी फैमिली, मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, तो मेरे को ऑफ सीजन में बस ड्यूटी ही जाना पड़ता है। तो अच्छा, अपने तरीके से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। कुछ लोग जो हमारे यहाँ अच्छा फैमिली बैकग्राउंड लेके वो जम्मू शिफ्ट होते हैं, दिल्ली शिफ्ट होते हैं, तो अपना स्किल कंटिन्यू करते हैं। देखिए इंडिया का एक, मैं बोलूं एक अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी होता है कि देखिए हम लोग जो है सीनियर टीम जो खेल रही है उनके आगे हम देख नहीं पाते हैं। जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो परिस्थितियां हैं, क्या आप लोगों को ये सुनने को मिलता है अरे यार आप लोग क्यों क्रिकेट खेल रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? तो क्या ये आप लोगों को डिफ्लेट करते हैं या फिर आप बोलते हो जैसे आमिर ने कहा जाने दो, जो बोलता है बोलना, मेरा काम है सिर्फ क्रिकेट? लेकिन आपको ये ताने सुनने मिलते हैं जहां भी आप जाते हैं? तो एक्चुअली सर जब मैं पढ़ाई कर रहा था 10th में, तो मेरा बैकलॉग्स आ गया। मेरे पापा को रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे उनके, बोला कि इसको पढ़ाओ, कोर्स करो, कल कहीं इसका नौकरी जॉब लग जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। मगर मेरा सारा फोकस है क्रिकेट पे ही। नहीं, मुझे खेलना है, क्रिकेट ही खेलना है। इससे पहले जब छोटे थे क्रिकेट स्टार्ट किया, इस क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं था। ये था कि बस इंडिया की जर्सी पहननी है, इंडिया के लिए खेलना है। उसके बाद 2008 में IPL स्टार्ट हुआ, बस फिर IPL के पीछे लगे कि IPL खेलना है या स्टेट के लिए खेलना है या कुछ। पापा को मैंने ये बोला कि मुझे आप 2 साल दे दीजिए कि मैं आपका नाम रोशन करूँगा। तो सर का सपोर्ट रहा, सर का हाथ हमेशा सर पे रहा।
1.5 साल में तो इंडियन टीम की अनाउंसमेंट हो गई वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ 2019 में और वैसे सिलेक्ट हो गए थे 2019 में वर्ल्ड कप के लिए। और वो तो जीत ही गए अभी 2019 से लेके 2024 तक ऐसा आप लोगों का स्ट्रीक है कि आप हारे ही नहीं हो लगभग। तो आप सबसे मैं एक पूछूंगा, उसके बाद मैं इन लोगों से आऊंगा जो आपके एकदम रीढ़ की हड्डी बन के रह गए हैं। तो वो कौन सा क्रिकेट पल था जो आप टीवी में देख रहे थे या कोई प्लेयर को देख रहे हो, जैसे आप इंस्पायर्ड हुए, हाँ यार मुझे ये खेल खेलना ही है? आप बताइए, फिर एक एक से पूछ लूंगा। इंस्पायर सर बस यही कि टीवी पे देखते हैं, इतने लोग आते हैं, फैमिली खुश होती है, रिश्तेदार खुश होते हैं। कौन सा एक मैच था जैसे हाँ यार मुझे ये भी गेम खेलना है? कौन सा एक मैच या मोमेंट था जो आपको याद है? सर 2007 में वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती पाकिस्तान के फाइनल। ऑफ कोर्स। और आपके लिए? मेरा सर बचपन से ही शौक था क्रिकेट खेलने का। मेरा भाई भी खेलता था, मेरे अंकल भी खेल रहे थे। अच्छा। तो उनको मतलब वो जब मैच खेलने जाते थे मुझे वो अच्छा लगता है, वो किट उठाते हैं जाते हैं। मेरा तो तब से ही है। फिर भाई आपका? जी सर, मैं भी बचपन से ही खेलते आ रहा हूँ। ज़्यादातर तो मुझे सबसे मेरे पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है खेलने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खेलता हूँ अपने भाई के लिए, क्योंकि वो फैमिली के लिए ज़्यादा देर खेल नहीं पाए क्योंकि फैमिली की कुछ नीड है तो उनको काम करना पड़ा बहुत जल्दी से ही। तो उनका जो शौक था अभी वो मैं पूरा कर रहा हूँ सर। तो भाई से बात हुई थी जब आप जीते थे तो? जी सर, भाई का सपोर्ट ही पूरा रहता है, रोज़ बात होती है उनके साथ, वही मोटिवेट करते हैं ज़्यादा खेलने के लिए, क्योंकि कभी घर में कुछ ऐसी नीडें होती है क्या खेलना छोड़ना पड़ता है, तो वो छोड़े, लेकिन उनने बोला मेरे हिस्से का क्रिकेट अब आप खेलोगे। माजिद जी आप बताइए, कौन सा मोमेंट था कि यार मुझे क्रिकेट खेलना ही है? कौन सा एक मैच या पल? जी सर, पल तो ऐसा था कि मेरे डैड जो वो मेरे इंस्पिरेशन रह चुके हैं, तो उनसे ही सब कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो जब मैं छोटा था वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। तब तक जो बॉल था ना सर वो मेरे हाथ में नहीं आता था। ओके। तो फिर डैडी ऐसा बोल रहे, नहीं आपको इसको ऐसे फेंकना होता है, इसको ऐसे करना। तो तब से लेके आज यही जहन में रहे कि नहीं खेलना है। तो बिल्कुल सपोर्ट रहा है मेरे डैडी का, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे भाई का, मेरी यहाँ तक कि मेरी मदर मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वाह वाह। तो अभी आप आईपीएल की बात कर रहे थे आमिर भाई, आपने आप आईपीएल की बात की थी। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस दैट दे आल्सो हैड सम हेल्प फ्रॉम द राजस्थान रॉयल्स। कौन ये बताइए किस्सा है, बहुत दिलचस्प किस्सा है कि राजस्थान रॉयल्स ने आपको बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, कैसे? अच्छा रवि जी आप देखिए, राजस्थान रॉयल जो है रंजीत भट्ट ठाकुर जी, तो उनसे मेरी जो है फ़ोन पे बात हुई, बल्कि मैंने मैसेज ही किया उनका। तो मुझे मालूम नहीं था कि इतने बड़े इंसान जो हैं वो मेरे को हाथ के हाथ रिप्लाई देंगे, और रिप्लाई भी क्या, रात को 2 बजे 3 बजे जो है लगातार उनका रिप्लाई। और बड़ा इंप्रेस हुए कि भी यार आप लोग ये क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी फ्रेंचाइजी का एक दायरा है, उसका एक क्राइटेरी है कि राजस्थान के अंदर जो भी अगर आपके मैचेज हैं या कुछ है तो वो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमने पहले एक व्हीलचेयर का इवेंट करवाया था नेशनल, उसमें काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद अभी लास्ट ईयर हमने नेशनल टूर्नामेंट किया तो उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। लेकिन ये जो इवेंट है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये होना था गुजरात के अंदर, तो वहाँ किस तरीके से राजस्थान रॉयल अपना सपोर्ट दे पाए वो उसके ऊपर बड़ा मंथन था। तो हम लोगों ने फिर उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा भी हम आपका जो कोचिंग कैंप है वो पूरा ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे, और जो नागपुर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के जो क्रिकेटर्स हैं वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं, वहाँ इन खिलाड़ियों को रखा गया है। उनको वही पर्सनल रूम दिए गए जहाँ वो इंटरनेशनल खिलाड़ी रुकते हैं, चाहे मैं संजू सैमसन की बात करूँ, युजवेंद्र चहल की बात करूँ, या कोच का जैसे हेमसंगा कर रहे हैं, उनके वो सब रूम उनको लिए दिए गए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही कि राजस्थान रॉयल जो पहली ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सामने आई है इन खिलाड़ियों के लिए, और उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट किया। 8 दिन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहना, इन पे काम करना, इनको हर फैसिलिटीज देना, ये अपने आप एक बड़ी बात रही है। बिल्कुल। और राजस्थान रॉयल्स के इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में देखा था कि जॉस बटलर और कौन सा खिलाड़ी है जो इनको मतलब अजिंक्य रहाणे, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हम थोड़ा सा तीसरा जो मैच है वो इंग्लैंड के साथ हार गए थे वो थोड़ा, लेकिन अगली सुबह ही राजस्थान रॉयल ने एक जो वीडियो इनके ऊपर बनाया गया था वो सुबह 8 बजे उन्होंने पोस्ट किया। उससे इतना मोटिवेशन इनके बच्चों को मिला, वो अपने आप में बड़ी बात होगी। समय के साथ और समय के अनुसार अगर वो जो चीजें हो जाएं उसका तो फायदा फिर मिलने वाला ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट
behind everything there is a big sponsorship thing. Remember DCCI and all these kind of these special Indian players, they really have to struggle for sponsorship, for funds, and in this we get Rajesh ji here. तो राजेश जी सबसे पहले देखिए, इंडियन सीनियर टीम सॉर्टेड, विमेन्स टीम सॉर्टेड, बाकी के जो है कैबी जो है अपना खुद की एक लड़ाई लड़ रही है, DCCI भी अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही है एज फार स्पॉन्सरशिप इज कंसर्न, एज फार अदर थिंग्स आर कंसर्न. तो आपको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि इंश्योर कि ये लोग खेले, कंसिस्टेंटली खेले और पैसों का कोई ये प्रॉब्लम ना हो? जैसे अपना इंडिया और इंग्लैंड का जो ये टूर्नामेंट था, 5 मैच थे T20 के, इसके अंदर बात करें तो हमें जगह जगह जाना पड़ा, बट हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को DCCI के बारे में, दिव्यांगों के बारे में, तो सब लोग इसमें आगे बढ़ के आए. ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी स्पॉन्सर्स के पास गए हो, उसने हमें खाली हाथ लौटा दिया हो. वो लोग आगे बढ़ के उन्होंने तुरंत स्पॉन्सरशिप ले ली है. जितने बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो सारे आगे बढ़ के आ रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आगे वाले समय में हम जितनी मेहनत करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, कॉर्पोरेट से जितने लोगों से जाके इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये खिलाड़ी हैं, इनको सेम लो आप, ऐसा नहीं इनको आप दिव्यांग सोचो. हमारे जो मेन जो खिलाड़ी हैं, आप समय निकालो. मैं सबको यही बोलता हूँ जाके, कॉर्पोरेट को भी. तो आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता कि मुझे या हमारे ऊपर जो हाथ है हमारे गॉड का, श्याम बाबा का, खाटू श्याम जी का, वो हमें बहुत हेल्प करेगा. और इन बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, रवि भाई जो कर रहे हैं इतने सालों से, वो जो मेहनत है वो पूरी रहेगी. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा. देखिए, काफ़ी समय की मेहनत रही है. अगर हम बात करें 2016 में पैरा ओलंपिक में हमने जब 4 मेडल जीते, उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स मूवमेंट भारत में किस तरीके से अलग से हुई, वो आपको अंदाजा होगा उसका. और आप देख भी रहे होंगे कि वो जो इक्वलिटी की बात करते हैं कि अगर मैं अपने देश के लिए मेडल जीत रहा हूँ, अगर मेरी राज्य सरकार नॉर्मल की किसी खिलाड़ी को उतना कैश अवार्ड दे रहा, तो वो पैरा ओलंपिक को भी दे रहा. तो यही चीज़ें जब हमने जय भाई के सामने रखी और जब उन्होंने हमारी बातें सुनी, तो वो मतलब वो भावुक इंसान है और वो आपकी चीज़ों को देख रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जब उनके समक्ष हमने चीज़ें रखी, तो इक्वलिटी की बात करें कि BCCI का और जय भाई का इतना बड़ा सपोर्ट हम लोगों को मिला. हमने जब उनसे बोला कि इंग्लैंड की जो नेशनल टीम है वो भी यहीं पे, और हमारी जो फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम है वो भी यहीं पे ही है, तो हम चाहते हैं कि सिमिलर उनको रखा जाए. उन्होंने 1 सेकंड लगाई, उनका खुद फोन करके आया कि रवि आपका सारा हम लोगों ने कर दिया है, आपका रहना 5 स्टार है, आपका मर्चेंडाइज है, कोकूबुरा बोल है, और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो हम बैठे हुए. इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, अब इतने बड़े स्टेडियम में आप खेल रहे हैं, और दूसरे आप जो ग्राउंड्स हैं, रणजी ट्रॉफी जिनको यूज कर रहा है, उन सब ग्राउंड्स को हमें मिल रहा है. तो ये आप देखिए कि BCCI का जो सपोर्ट है, और खासकर जय भाई का, वो कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. और वो हमारे खिलाड़ी भी कर रहे हैं, वो जीत में उसको तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि जीत आपको बड़ा बनाती है. जब आपको जीत बड़ा बनाती है तो भारतीयों के चेहरों पे खुशियां आएंगी तो आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सब है. तो BCCI का पूर्ण रूप से हम लोगों को सपोर्ट मिला है, और उसी सपोर्ट के सहारे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. मैंने आपसे पहले भी पूछा था अबाउट इंस्पिरेशन, मतलब क्या वो पल था, कैसे ये है, लेकिन आप अपने क्रिकेटिंग जर्नी में मतलब कैसे आप लोगों ने धीरे धीरे तरक्की किया, क्या क्या आपको मुश्किलें झेलना पड़ा था, एक आप बता सकते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, कैसे आप इंस्पायर हुए कि ठीक है मुझे ये क्रिकेट का जर्नी छोड़ना नहीं है. आप लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट किया था ये सफर में? स्टार्टिंग आपसे किसी से भी कर सकते हैं. यही था सर कि जब पहले स्टार्ट किया था, पीडी क्रिकेट में आए थे, तब जब आए थे तब ये लग रहा था कि शायद हम पता नहीं कहाँ आ गए. अभी उस वहाँ से अभी तक का सफर सर बस इस क्रिकेट में आसमान और ज़मीन की फर्क है. अभी 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, लास्ट ईयर हम उदयपुर से पहले लखनऊ में 3 स्टार होटल, यहाँ भिवानी की सीरीज में 5 स्टार होटल. अभी बहुत फर्क है सर. सेम इक्वलिटी मिलती है अभी, जैसे कि रवि सर ने बताया कि ये सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको, रुकावट कर रहे हैं बस कब देगा बॉलर्स का. बस हम भी सर, हमारे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा करेंगे, देश के लिए भी अच्छा करेंगे और इससे अच्छा भी करेंगे आने वाले सीरीज हो, आने वाले टूर्नामेंट्स हो, टू मेक आवर कंट्री प्राउड. वाइस कैप्टन जी आप बताइए. जी बिल्कुल, जी आप बोल रहे हैं कि एक फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में, उसको चैलेंजेस मिलते ही रहते हैं. तो मैं जब मतलब
मैं कई बार क्रिकेट छोड़ने के डिसीजन पे आया था, मतलब नहीं यार मैं डिसेबल हूँ, आगे चल के कुछ करना है। तो मेरे तो बड़े भाई भी हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स, अच्छा रहन सहन है हमारे मतलब फैमिली का। तो मेरी मॉम ने एक बार बताया कि मुझे बस इसकी चिंता है, ये थोड़ा हैंडीकेप्ड है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे ही किसी से बात करी थी, मैं सुन रहा था, मैंने उस टाइम सोचा नहीं मेरे को, आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो मैंने सोचा नहीं मैं कुछ करूँगा अच्छा सा नौकरी लेके, बस ये छोड़ दूँगा। तो उसी साल मुझे पता चला कि ऐसा डिसेबिलिटी, जाफर ने मुझे कॉल किया, आमिर ने मुझे कहा कि डिसेबिलिटी क्रिकेट है, आप ट्रायल के लिए आ जाओ। पता नहीं सर को याद होगा नहीं, मैं जम्मू में आया ट्रायल के लिए, मेरे पास खाली एक बैट था, एक बैट लेके और थोड़ा सा बैग में कपड़े वपड़े थे, किट वगैरह था नहीं मेरे पास, मैंने वो बैट एक फ्रेंड से लिया था। मतलब आपको बता दो कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट होना चाहिए, किसी भी काम में फाइनेंशियली भी सपोर्ट होना चाहिए। तो कहीं कहीं हम लोगों को फिर लगता है कि नहीं ये अब नहीं चलेगा आगे, लेकिन तब से जब मतलब वो क्रिकेट स्टार्ट हो गया, मैंने वो ट्रायल दिए, मैं आगे शिफ्ट हो गया, मतलब दूसरे लेवल पे कर्नाटक हुबली में दूसरा ट्रायल था हमारा, वहाँ भी अच्छा किया, फिर मुंबई में था, फिर वही सिलेक्ट हो गया। तो तब से मैंने फिर वापस नहीं क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया, नहीं कुछ अच्छा होने वाला है। तो तब से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और रवि सर की मेहनत की वजह से, वो DCCI जो काम करते हैं, तब से बहुत अच्छा हो रहा है हम लोगों को। मतलब ये सोच में नहीं आया कि अभी क्रिकेट छोड़ेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है। जैसे आमिर ने भी बात की, चाहे फूड हो, एकोमोडेशन हो, आना जाना, ट्रैवलिंग, सब कुछ एक क्लास मिलता है हम लोगों को। तो ये तो सर का काम है और DCCI का। और सबसे पहले मैं और एक बात कहना चाहूँगा, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर जेशा सर कि वो हमारे इस क्रिकेट में ध्यान दे रहे हैं। तो हम ऐसे ही मतलब हमारी इच्छा ये है कि वो आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहें, ताकि हम भी उस लेवल तक जाएं जैसे वुमेन्स क्रिकेट का लेवल है या मेंस सीनियर का लेवल है। तो हमें भी वैसा मौका मिलना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी कंट्री को प्राउड फील करा सके, हम भी अपने देश को नाम रोशन कर सके। हर एक इंडियन के बंदे के दिल में यही होता है कि किसी तरीके से मुझे मतलब जाना जाए कि ये इंडिया का है। बिल्कुल, मतलब हम लोग भी वही चाहते हैं कि हम जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हमारे सीनियर मैन या वुमेन्स टीम में, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। तो जितना उनका नाम है, हम भी चाहते हैं कि हमारे डिसेबिलिटी में भी वो नाम आए, ताकि तब जाके हमारा भी मतलब अच्छा हो। बिल्कुल। आपका भी ऐसा ही किस्सा होगा जफर भाई? जी बिल्कुल सर, पहले स्टार्ट तो वो बच्चों की तरह ही होता है, वो प्लास्टिक बैट बॉल से ही। तो खेला तो वैसे ही स्टार्ट किया है, तो खुद के लिए ही खेलते थे सर, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए। फिर जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो देखा कि हम में और नॉर्मल्स में थोड़ा तो फर्क है, मतलब वो क्रिकेट तो नहीं खेल सकते हम जो बाकी सब खेल रहे हैं। तो ऐसे ही खुद के लिए, खुद को खुश करने के लिए मोहल्ले की टीम में ऐसे वैसे मैच होते थे, नॉर्मल लीग मैच, तो खेलते रहते थे। फिर एक बार मैं प्रैक्टिस के लिए गया था, तो किसी ने मेरा वीडियो लिया था और अगले दिन देखा वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये 2018 की बात है। फिर मेरा कांटेक्ट हुआ, मेरी बात हुई रवि सर से। तो रवि सर ने ऐसे बोला, तो उन्होंने बुलाया फिर मुझे खेलने के लिए। तो हमें कुछ कश्मीर में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था ऐसे क्रिकेट का उस टाइम। तो जैसे ही सुना तो गया मैं खेलने के लिए। फिर जैसे ही वो एक प्लेटफॉर्म एक नज़र आया, तो वहाँ से माइंडसेट चेंज हुआ सर। तो कि आगे खेलना है, फिर स्टेट के लिए ऐसे टूर्नामेंट। फिर जब आगे बढ़ा तो उम्मीदें बढ़ने लगी सर। तो फिर वो एक टारगेट, वो एम एक होता है कि ये ब्लू जर्सी पहनी। सब क्या एम होता है सर जो भी क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन हमें फिर वो प्लेटफॉर्म के जरिए दिखने लगा कि एम क्या है, टारगेट क्या है। तो सबकी किस्मत में नहीं होती है, तो हम खुशकिस्मत समझते हैं खुद को कि हमें ये पहनने को मिला। मालिक जी सर, जर्नी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे कश्मीर में मतलब जब से मतलब थोड़े से बड़े हो गए, जब क्रिकेट स्टार्ट हो गया तो हमें लगा तो वहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ लीग्स होती थी, तो वहाँ पे सभी नॉर्मल प्लेयर्स खेलते। तो कहीं ना कहीं मन में ये आता था कि नहीं, काश हम भी खेल पाते, तो ऐसा कुछ। लेकिन फिर जब थोड़ा स्टार्ट हुआ तो मेरा एक दोस्त ही है, उसका नाम इश्तियाक रसूल है। तो उनसे मेरी बात हुई, बोला कि ऐसा है कि पीडी क्रिकेट होता है। तो मुझे पहले नहीं पता था कि इस बारे में ये क्रिकेट होता है। तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया वसीम से और जाफ़र से। इन्होंने मुझे बोला ऐसा है कि हमारे यहाँ ट्रायल्स हो रही है जम्मू में। हम एक ही साथ थे वसीम में। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने ट्रायल्स की, हम दोनों ने अच्छा किया, तो वहाँ पे नाम आगे चला। तो फिर हमने हमारी बात रवि सर से हुई। उन्होंने वहाँ पे विश्वास दिलाया कि आप मेहनत करो, आप बहुत आगे जा सकते हो जी।
तो वही तब से लेके आज तक मैं हमारी कोशिश यही रही कि अपना बेस्ट देना है, बेस्ट ही कर रहे हैं। एक तो- लाइन बोलो। जी मैं जय भाई को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा कि जो DCCI को सपोर्ट कर रहे हैं, और वही रीज़न है कि हमारे साथ सारे कॉर्पोरेट जुड़ेंगे। उनका सपोर्ट जो रहेगा, अपने आप हमारे साथ कॉर्पोरेट जुड़ेंगे और इनको लिए सबके लिए अच्छा से अच्छा काम होगा, इनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यही मेरी शुभकामनाएं सब। यही तो बता रहे हैं कि सबका फैसिलिटी से। तो आखिरी सवाल, इतना आप लोगों ने कर दिया है, इंग्लैंड के साथ सीरीज जीत लिया है, अब इसके आगे क्या प्लान्स है रवि जी? देखिए, क्रिकेट तो लगातार चलाना है, जी। लगातार इन खिलाड़ियों को घर से बाहर निकालना और खेल के मैदान पे लेके जाना है। तो जिस तरीके से हमारी नेशनल मेंस टीम खेलती है, उस तरीके से हमें टूर भी प्रोग्राम्स बनाने हैं, बायलैटरल सीरीज भी खेलनी है, एक दूसरे देश में भी जाना है, दूसरे देश को यहाँ बुलाना। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े इवेंट्स हैं, जिनको देख के सरकारें भी आपके सामने आती हैं, जिनको इनको नेशनल अवार्ड्स भी मिलेंगे, कैश अवार्ड्स भी मिलेंगे, तो एशिया कप जैसे, है ना। लेकिन इस बार हमने प्लान किया और 5 तारीख को हमारी जो मीटिंग हुई, जितने हमारे देश ये फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट खेलते हैं, हमारा जूम कॉल पे हम लोगों ने मीटिंग किया कि जो 2019 में जो वर्ल्ड सीरीज था, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ और इंग्लैंड टीम पहली बार ये खेलने के लिए आई है। तो वर्ल्ड कप जो है वो भारत में हम कराने का हमने प्लान कर दिया है, और वो जो है भारत में आपको लास्ट जो इस साल का है उसमें आपको ये वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, जिसमें दुनिया की 8 कंट्री जो है हिस्सा ले रही हैं। वाह। तो ये बड़ा हम लोगों ने प्लान किया है कि एक वर्ल्ड कप जो हम लोग कराएं, ताकि हमारे खिलाड़ियों को और दूसरे देशों के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले और इनको वर्ल्ड कप जो मूवमेंट होता है वो उसको समझ में आए। तो वर्ल्ड कप हम लोगों का प्लान। तो उम्मीद करते हैं कि इस ट्रॉफी की जगह अभी वर्ल्ड कप का ट्रॉफी आए बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो थैंक यू सो मच folks. Let us support this team, क्योंकि for the last 5 years they have not lost, and that is the strength. Thank you so much to all our guests for joining us for this very, very special interview. Thank you so much folks for joining us for this. We'll be back for more updates from Sports Straight. Tap that bell icon so when we go live, and don't forget we're on Facebook, Twitter and Instagram as well. This is Siddharth Vishwanathan signing off.